of Learning Science with Srishti. I hope you guys are doing well and preparing well for the exams. So in our last video we have discussed about the various parts of nerve cells and the transmission of nerve impulses, and now in this video we are gonna learn about the different parts of the human nervous system. So without any further delay, let's begin with our today's topic. So our human nervous system is basically divided into three main parts, that is the central nervous system, the peripheral nervous system and the autonomic nervous system. We are going to learn all these three now separately. So let us begin first with the central nervous system. So central nervous system, as the name suggests, is the central and the foremost important part of the human nervous system, and it is composed of the brain and the spinal cord. यानी कि हमारे बॉडी में जो central nervous system है, which is a part of nervous system, it is composed of the main organ of our nervous system, that is the brain and the spinal cord. Now what is the function of brain? हम जितना भी हमारे बॉडी का मूवमेंट करते हैं, वेरियस फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, ब्रीदिंग हो गया, हार्ट रेट का चलना हो गया, various functions, all these functions are controlled by the brain only. Now the spinal cord. What is the function of the spinal cord? Spinal cord work as a relay channel for the signal between the brain and the peripheral nervous system. Now what does the word relay means here? Relay is simply nothing but the transmission of impulses between the brain and the peripheral nervous system. यानी कि brain and peripheral nervous system के बीच में impulses का transmission कराना, that is the basic function of the spinal cord. Now let us move on to the next nervous system, that is the peripheral nervous system. Now what is peripheral nervous system composed of? It is composed of the cranial nerves and the spinal nerves. मैंने ये बात पहले भी डिस्कस करी थी ना फर्स्ट वीडियो कि हमारे बॉडी में वेरियस काइंड ऑफ नर्व्स होते हैं, लाइक क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स. सो व्हाट आर द क्रेनियल नर्व्स? सिंपल डेफिनेशन क्रेनियल नर्व्स का ये है कि दोज नर्व्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन. वैसे नर्व जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट करते हैं उसको हम लोग क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं. सो देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन आवर बॉडी. This point is important कि there are 12 pair of cranial nerves. So basically CBSE बोर्ड ने इस बार एग्जाम पैटर्न को चेंज किया है, एंड देयर विल बी अबाउट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन योर पेपर. सो ये छोटे मोटे पॉइंट्स जो हैं यू शुड टेक केयर ऑफ दिस कि कितने पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व के, कितने पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व के, बिकॉज दिस क्वेश्चंस माइट बी आस्क्ड. ओके, so what are cranial nerves? So those nerves which originate from our brain and go to organs in the head region. Now यहाँ पे क्या बोल रहा है कि head region में जितने भी organs आते हैं उसको ये supply करता है with the nerves. तो कौन से region आते हैं, मतलब head region में कौन कौन से organ fall करते हैं? So they basically innervate our skin, मसल एंड द जॉइंट्स ऑफ हेड एंड नेक रीजन. यानी कि हेड नेक रीजन में जितने भी स्किन पार्ट हो गया, मसल्स पार्ट हो गया एंड जॉइंट्स का पार्ट हो गया, उन सबको सप्लाई करना हमारे क्रेनियल नर्व्स का काम होता है. नाउ अबाउट देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व. स्पाइनल नर्व 31 पेयर्स होते हैं जो कि हेड रीजन के अलावा जितना भी पार्ट है हमारे बॉडी में सबको सप्लाई करते हैं. सो देयर आर मेजॉरिटी ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन आवर बॉडी. देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स, वेयर एज ओनली 12 पेयर्स ऑफ cranial nerve are present in our body. So spinal nerves, as the name suggests, spinal, so it comes out from the spinal cord, or it originates from the spinal cord, and it innervates those regions which are except the head region, like those part which are left after the cranial nerves innervation or supply, those parts are supplied by the spinal nerves, like all the part, our hand, legs, जितना भी बॉडी पार्ट लेफ्ट हो रहा है हेड एंड नेक रीजन के अलावा, all those parts will be supplied by our spinal nerves. Now let us move on to the third part of the nervous system, and that is the autonomic nervous system. Autonomic nervous system is one of the important part of our nervous system. Why? Because it controls various functions of our body, like it increases or decreases our heart rate according to the situation. So what is autonomic nervous system composed of? It is composed of a chain of nerve ganglion which runs along the spinal cord. So ये nerve ganglion के chain से बना होता है जो कि spinal cord के across क्या करता है, run करता है. It controls all the involuntary actions. Involuntary actions वो होते हैं which are not in our control, जैसे कि blinking of eye हो गया, heart rate होना, heart rate का increase या decrease होना, breathing rate, these are all digestion. ये जितने भी मतलब functions है हमारे बॉडी के, these are all these actions are involuntary which are not under our control.
Now, autonomic nervous system जो है it is further divided into two parts, that is the sympathetic and the parasympathetic nervous system. So sympathetic nervous system का सिंपल यही काम है कि वो आपके जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है उन सबको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, हमारे ऑर्गन की एक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. जैसे कि हार्ट रेट है तो इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट इट विल इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट. अगर हम लोग आई की बात करें तो आई में जितने मूवमेंट होते हैं लाइक ब्लिंकिंग ऑफ आई, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम विल इंक्रीज द ब्लिंकिंग ऑफ आई, इट विल डायलेट द प्यूपिल. सो इसका काम जो है वो हमेशा हाइटन करना होता है एक्टिविटी को, यानी कि एक्टिविटी को बढ़ाना, किसी भी ऑर्गन की एक्टिविटी को बढ़ाना इज द रोल ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल जब कभी भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, सो अचानक से क्या होता है, वी रिक्वायर मोर एनर्जी एंड हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है ना. जब भी हम कोई रनिंग परफॉर्म करते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो वी रिक्वायर मोर एनर्जी एंड देयर इज़ अ मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बाय आवर बॉडी. सो इस केस में क्या होता है कि हमारी ब्रीदिंग रेट, यानी कि हम हाफने लग जाते हैं बहुत टाइम पर, हमारी हार्ट रेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. सो ऐसा क्यों होता है, दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. जैसे ही हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, एनर्जी की डिमांड बढ़ी, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने अपना काम किया एंड इट इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट एंड द हार्ट रेट, ताकि जो हमारी ऑक्सीजन की और एनर्जी की डिमांड है वो फुलफिल्ड हो जाए. ओके, नाउ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, नाम में पता चल रहा है कि डिफरेंस है, अपोजिट है नाम. सिंपैथेटिक का मतलब इंक्रीज करना, पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है डिक्रीज करना. सो सिंपैथेटिक ने तो अपना क्या किया, ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया. अब उस हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट जो कि इंक्रीज्ड है उसको डिक्रीज करने का काम होता है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का. उसको डिक्रीज करने का काम किसका होता है, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का. Now, so this part slows down the activity of an organ, thus has a calming effect. यानी कि इसका इफेक्ट कैसा होता है, कामिंग होता है. ऑब्वियसली अगर हमारा हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज है तो वी विल बी क्या, हम हाफ रहे हैं, सो ऑब्वियसली वी विल नॉट बी इन अ काम पोजिशन, हम काम तो नहीं होंगे उस वक्त में. तो हमें काम करने का काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, बिकॉज वो हमारे बॉडी की एक्टिविटी को, ऑर्गन्स की एक्टिविटी को क्या करता है, कम करता है. जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रीदिंग रेट है और हार्ट रेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. और क्यों होता है, इट इज़ डन with the help of the parasympathetic nervous system. जब कभी भी हम लाइट में जाते हैं तो हमारा प्यूपिल क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है. प्यूपिल क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, ताकि जो हमारे आइज़ में है वो ज़्यादा लाइट ना पड़े और अल्टीमेटली हमारी आइज़ क्या हो, डिस्टर्ब ना हो, ख़राब ना हो. सो ये काम भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल. सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सिंपल यही काम है कि बॉडी के ऑर्गन की एक्टिविटीज़ को क्या करना, डिक्रीज करना. ओके, सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो सोते वक्त ये हमारे ब्रीदिंग रेट और हार्ट रेट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है. सो ऑब्वियसली अगर हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट कम है तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी कम यूज्ड अप होगा. सो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन वन वे और अनदर ऑल्सो हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ यहाँ पे एक मैंने चार्ट टाइप की बना रखी है ताकि आपको ज़्यादा इजी समझ में आ पाए कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं और बेसिकली उनमें क्या क्या आता है. सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट, दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, peripheral nervous system and the autonomic nervous system. Central nervous system as we discussed consist of brain and the spinal cord, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे कि ब्रेन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, लाइक फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, हम सब के बारे में पढ़ेंगे. स्पाइनल कॉर्ड के भी बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व जैसे कि मैंने डिस्कस किया, दोज नर्व विच ऑरिजिनेट फ्रॉम आवर ब्रेन, यानी कि वो नर्व जो कि हमारे ब्रेन से ऑरिजिनेट करती हैं उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं. एंड दे सप्लाई स्किन मसल्स एंड जॉइंट ऑफ द हेड एंड द नेक रीजन, यानी कि हेड रीजन में जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको इनर्वेट करना, सप्लाई करना नर्व से इज द वर्क ऑफ आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है. स्पाइनल नर्व्स बाकी सारे पार्ट को सप्लाई करती है एक्सेप्ट द हेड रीजन, बिकॉज हेड रीजन को सप्लाई करने का काम किसका है, क्रेनियल नर्व का होता है. ये 12 पेयर्स होते हैं, ये 31 पेयर होते हैं. दिस पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर्ड वेल फॉर योर एग्जाम्स. नाउ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लास्टली कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक का मीनिंग सिंपल याद रखना कि इंक्रीज करती है एक्टिविटी ऑफ ऑर्गन को, एंड पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन. ये इंक्रीज करेगी हार्ट रेट को, ब्रीदिंग रेट को, डाइजेशन रेट को, प्यूपिल को डायलेट करेगी, और उसके अपोजिट इसका सारा काम होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का. सिंपैथेटिक के अपोजिट सारा वर्क होता है पैरासिम्पैथेटिक का, इट डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो स्टूडेंट. आई होप कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, और अगर आपको कोई और टॉपिक, कोई और चैप्टर अगर इस चैप्टर से पहले पढ़ना हो तो वो भी आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो. मैं आपका वो चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी पहले.
Okay, bye bye, see you in the next video.